Are you happy, church? क्या आप खुश हो कलीसिया? Are you happy? क्या आप खुश हो सच में? वास्तविकता में? Are you happy, church? कलीसिया आप खुश हो? Amen. Why are you happy? आप खुश क्यों हो? क्यों खुश है? क्या कारण है? What's the reason? Because we are in the house of the Lord. Hallelujah. परमेश्वर के घर में हमें हालेलुया। Hallelujah. You know, for Christians, मसीह के लिए, those who follow Jesus Christ, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, nobody can steal your joy. आपका आनंद कोई चुरा नहीं सकता। I said nobody can steal your joy. आपका आनंद कोई नहीं चुरा सकता। Hallelujah. हालेलुया। You know, because the source of your joy is inside of you. क्योंकि आपका आनंद का स्रोत ही आपके अंदर है। Hallelujah. हालेलुया। The source is the Holy Spirit Himself. और वो स्रोत है पवित्र आत्मा। So nobody can steal your joy. इसलिए आपका आनंद कोई नहीं चुरा सकता। No matter what circumstance you're surrounded by. चाहे किसी भी परिस्थिति से आप घिरे हुए क्यों न रहे, Hallelujah. Hallelujah. No one can steal your joy. आपका आनंद कोई नहीं चुरा सकता। Because my joy does not depend on what I'm going through. क्योंकि मेरा आनंद इस पर निर्भर नहीं है कि मैं किस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ। Because in your life, क्योंकि आपके जीवन में you will have good times and times which are not so good. आपके जीवन में ऐसे समय आएंगे जो अच्छे रहेंगे और कुछ हो सकता है अच्छे नहीं भी हो। Hallelujah. हालेलुया। Am I speaking the truth? क्या मैं सच्चाई बयां कर रहा हूँ? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसका पूरे लाइफ में एक भी ऐसा टाइम नहीं आया है जहाँ पे क्या थोड़ा सा बैड रहा है? Is there anyone seated over here who has not encountered a bad scenario or a time in their life? We all go through challenges, हम चुनौतियों से गुजरते हैं। different temptations, different trials. अलग-अलग प्रकार के मोह और परीक्षाओं से गुजरते हैं। Right? हाँ या ना? Yes? But each and every moment of your life, लेकिन जिंदगी के हर एक क्षण में you need to know that God is good. हमने ये जाना है कि परमेश्वर भले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Because He is the source of your peace and joy. क्योंकि आपके शांति और आनंद का वही स्रोत है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Last time we saw from Jeremiah 29:11 यिर्मयाह 29:11 से पिछली बार हमने देखा था that God thinks about you. कि परमेश्वर आपके बारे में सोचते हैं। Hallelujah. हालेलुया। This God who created the universe, ये परमेश्वर जिसने पूरे सृष्टि को बनाया, He thinks about you. वो आपके बारे में सोचते हैं। For us, it's such a small thing. हमारे लिए तो ये छोटी बात रहेगी, But when I was starting to meditate on this, लेकिन जब मैं इस पर मनन कर रहा था that God thinks about me, कि परमेश्वर मेरे बारे में सोचते हैं, I am on His mind, मैं उनके मन में हूँ it really blew me away. और मैं अचंभे में आ गया। Because there is no need for this God क्योंकि कोई जरूरत नहीं इस परमेश्वर को to think about one person among how many people are there in this world? 8 billion now? 8 बिलियन लोग हो गए यहाँ से। 8 billion. Among 8 billion people, ये 8 बिलियन लोगों में God thinks of me. परमेश्वर हमारे बारे में सोचते He knows you. हैं। वो आपको जानते He हैं, thinks about you. आपके बारे में विचार Can करते you हैं। imagine that? क्या आप इसके बारे में कल्पना कर सकते हैं? Hallelujah. हालेलुया। We are privileged people. हम वो सौभाग्य लोग हैं, We are sons and daughters of the living God. जीविता परमेश्वर के पुत्र और बेटियां हम हैं। And not only that, और ना सिर्फ इतना, the word of God says, परमेश्वर का वचन कहता for है, I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. परमेश्वर ये कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में जो विचार है वो मैं जानता हूँ, Thoughts of peace and not of evil. शांति और बुराई के नहीं। Hallelujah. That word peace is shalom. और शालोम ये शांति उस शब्द का अर्थ है। Can everybody say shalom? शालोम। Hallelujah. हालेलुया। Shalom means wholeness or completeness. शालोम यानी कि परिपूर्णता, पूर्ण होना उसमें। Hallelujah. हालेलुया। The goodness of God does not depend on your circumstance. परमेश्वर की जो भलाई है आपके परिस्थिति पर वो निर्भर है। Because when Jeremiah was writing this verse, क्योंकि यिर्मयाह जब ये
वचन लिख रहा था। I shared this last time also. पिछली बार भी मैंने ये बताया। Where was Israel? इज़राइल कहाँ पे था? Where were they? इजिप्ट में नहीं था, मिस्र में, बैबीलोन में था, बेबीलोन में। है ना? And they were in exile. और वो उस वीराने में थे, उस बंदित्व में थे। Right? At that time, Jeremiah writes to them. यिर्मयाह उस समय में ये वचन लिखते हैं। God is saying, परमेश्वर ये कह रहे हैं, I know the thoughts that I think toward you. मैं वो विचार है जो तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, मैं वो जानता Thoughts हूँ। of shalom, not of evil. और जो वो विचार है आपकी कुशलता के लिए है, आपकी हानि के लिए नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Imagine what the Israelites might be thinking after hearing this. कल्पना कीजिए इजरायली लोग क्या सोच रहे होंगे अपने मन में जब उन्होंने ये वचन सुना होगा। You know, last time I mentioned about this. पिछली बार मैंने इसके बारे में बताया। I would have been there. अगर मैं उस वक्त वहाँ पे रहता, I would have said, Lord, you know, you've lost it. मैं कहता था कि परमेश्वर शायद आप सब खो चुके हैं, शायद आपको पता नहीं क्या हो रहा है वास्तव में। Look at my situation. मेरी परिस्थिति तो देखो। Look at where I am. देखो तो मैं कहाँ पे हूँ। The king of Babylon has captured my entire nation. बेबीलोन के राजा ने मेरे पूरे राष्ट्र को कब्जे में ले लिया Half of है। us are dead, आधे तो मर चुके हैं and half of us are here. और आधे लोग यहाँ पे And you are हैं। saying your thoughts toward me are that of shalom. और आप ये कह रहे हो कि मेरे जो विचार है आपके लिए वो शांति के लिए है। My friends, your circumstance does not determine the goodness of God. मित्रों, आपकी जो परिस्थिति है वो परमेश्वर के भलाई को वहाँ पे वो बयान नहीं कर सकती। Hallelujah. हालेलुया। So doesn't matter what your circumstance is. चाहे किसी भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, I want you to understand मैं चाहता हूँ आप ये समझ लें that God is good. कि परमेश्वर आप भले। It is very easy to say that in theory, आसान है सिर्फ बड़बड़ाने के लिए, right? हाँ या ना? ना preachers भी बोलते हैं, हाँ, प्रचारक भी ये कहते कुछ हैं। भूल गए तो okay, कैसे time extend करो? God is good all the time. God is good. अच्छा हाँ, this is the next part. हाँ, if the preacher forgets in the middle of the sermon, he forgets the whole message, then what he covers it up by saying परमेश्वर भले है बीच में, और फिर वो समय गंवाने की कोशिश करता है। But do we understand that He really is good for me? लेकिन क्या हम ये वास्तविकता में समझ पा रहे हैं कि वो हमारे साथ में भले हैं, अच्छे हैं? Because your level of trust will depend on your understanding of His goodness. क्योंकि आपके भरोसे का स्तर उस पर निर्भर है कि उनकी भलाई किस प्रकार से है। Are you understanding, church? आपको ये समझ में आ रहा है? Because if you don't trust that He is good, क्योंकि आप इस पर जब अब तक भरोसा न कर पाओ you कि वो will भले हैं, you will not be able to have faith in Him, तो तब तक आप उन पर विश्वास नहीं कर पाओगे, right? हाँ या ना? Because you will not be convinced of the fact that God will always, the outcome that God has in His mind is always for my good. क्योंकि आप ये यकीन ही नहीं कर पाओगे कि परमेश्वर जो कुछ भी कर रहे हैं उसका नतीजा आपके लिए भलाई ही उत्पन्न करेगा। Hallelujah. हालेलुया। And then the Lord says, और फिर परमेश्वर to कहते give हैं you a future and a hope. आपको एक भविष्य देने के लिए, आपको आशा देने के लिए। I love the verse that we confessed this morning इस सुबह हमने जो वचन कबूल किया वो मुझे पसंद आया। from Romans 15 रोमियो 15 and verse number 13. और 13 वचन। Now may the God of hope, परमेश्वर जो आशा का दाता है, hallelujah, Hallelujah. He is the God of hope, वो आशा का परमेश्वर है। hallelujah. हालेलुया। So if you are sitting here अभी अगर आप यहाँ पे बैठे or you are हैं, listening to me online अगर यहाँ आप मुझे ऑनलाइन सुन पा रहे and हैं you are going through a hopeless situation, और आशाहीन परिस्थिति से आप गुजर रहे know हो, that the one you are worshipping here in this place is the God of hope. ये जान लें कि जिस परमेश्वर की आप आराधना कर रहे हैं वो आशा का परमेश्वर है। Fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. वो तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हें आशा बढ़ती जाए। Everybody say abound in hope. आशा में बढ़ते जाए। We need to abound in the hope
which we have understood. हमने जो आशा समझ ली है उसमें बढ़ते जा रहा है। Hallelujah. Hallelujah. The plans that I have for you, जो योजना उन्होंने आपके लिए रखी है, I want to give you a future. मैं आपको एक भविष्य देना They चाहता are हूँ, for a hope. वहाँ पे एक आशा देना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। You know, the Bible tells us पवित्र शास्त्र हमें ये कहता है how to live as a good Christian person. अच्छा मसीह इंसान के समान हमने कैसे जीना How है। you can live like a good follower of Jesus Christ. यीशु मसीह के एक पीछे चलने वाला किस प्रकार से हमने बनना है। So the Bible gives us a very general perspective of how a Christian believer should look like. पवित्र शास्त्र हमें ये बतलाता है कि एक मसीह ने किस प्रकार के उसके जीवन को वहाँ पे जीना है, Right? हाँ या ना। But at the same time, उसी समय में God also has given each and every one of you a personal assignment. परमेश्वर ने व्यक्तिगत तौर पे हर एक को एक कार्य दिया है। Hallelujah. हालेलुया। So there is the general will of God, देखिए एक सामाजिक वो एक इच्छा है परमेश्वर which की, is common for all of us. जो सामूहिक है हम सब के लिए, Right? हाँ या ना, Correct? हाँ या ना। But there is also a personal will, लेकिन एक व्यक्तिगत इच्छा भी है, a personal assignment एक व्यक्तिगत कार्य भी है that God has given to you. परमेश्वर ने जो आपके लिए दिया है। Hallelujah. हालेलुया। That is why in this church, इसीलिए इस कलीसिया में only those who come on stage सिर्फ जो मंच पे आते हैं, and those who preach, जो प्रचार करते हैं, those who confess, help in word confession, जो वचन कबूली में मत करते हैं, they are not ministers only. सिर्फ वही परमेश्वर के सेवक नहीं है। If you are sitting here, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, you are a minister chosen by God. आप वो सेवक हो जो परमेश्वर ने उनका चुनाव किया है। Hallelujah. Hallelujah. You are called by God. परमेश्वर ने आपको बुलाया है। Hallelujah. Hallelujah. Do you believe that? क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? Just because your ministry looks different doesn't mean it's not a ministry. आपकी सेवकाएं कुछ अलग दिखती है, उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस सेवकाएं में नहीं हो या फिर आप उनके सेवक नहीं हो। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. You are called by God. परमेश्वर ने आपको बुलाया है And today I want to challenge you और आज मैं आपको चुनौती देता to हूँ, have a God-sized dream. परमेश्वर रूपी वो सपना रखे। You know, a few years back, Pastor preached a series of sermons. और कुछ साल पहले पासवान ने प्रचार वहां पे किया था And he spoke to us about not limiting God. और उन्होंने कहा था परमेश्वर को आप सीमित न करें। Can everybody say, don't limit God? परमेश्वर को परमेश्वर को सीमित न करें। सीमित ना करे. How can I limit God? मैं परमेश्वर को सीमित कैसे कर सकता Who हूँ? am I to do that? मैं कौन हूँ ये करने वाला? You know, in the book of Mark, मरकुस की किताब में there is a verse. I don't remember the reference right now. मुझे वचन का उल्लेख पता नहीं कहाँ पे है वो। I think it's Mark 6, मरकुस 6 में होगा, but I might be wrong. मैं गलत हूँ। Jesus goes to his hometown, यीशु मसीह अपने घर वहाँ पे शहर में जाते हैं and the Bible says और पवित्र शास्त्र कहता है that he could not do many miracles there. वो वहाँ पे बहुत चमत्कार नहीं कर पाए। Now, did Jesus really was unable to perform miracles? आपको लगता है कि यीशु मसीह वास्तविकता में वहाँ पे चमत्कार नहीं कर पाए? What do you think? आपको क्या लगता है? What do you think? आपको क्या लग रहा है? Was he unable to perform miracles? वो वहाँ पे चमत्कार नहीं कर सकते थे क्या? नहीं, मतलब उसमें सामर्थ्य नहीं था क्या miracles करने के लिए? He didn't have that power to do Of course he had. He that. raised the dead. He raised Lazarus from the dead, right? हाँ, उन्होंने अगर मरे हुए से जिलाया है, लाजरस को उन्होंने जिलाया है, But because लेकिन क्योंकि the people in his hometown limited him, उसके शहर के लोगों ने उसको सीमित किया था, मर्यादित किया था, that is why he didn't do any miracles there. इसीलिए वहाँ पे उसने कोई चमत्कार नहीं किए। See how we can read the same Bible, देखिए हम जब वही पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, but we allow God to work in our lives differently. That is why God, we see different manifestations in all of our lives. हम इजाजत देते हैं परमेश्वर को अलग अलग तरीके से चमत्कार हमारे जीवन में करने के लिए, इसीलिए अलग अलग तरीके से परमेश्वर को हमारे जीवन में प्रतीत होते हुए हम देख पाते हैं।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding, आपको church? समझ में आ रहा है कलीसिया? Once we understand the thoughts which God has for us, एक बार हमने ये समझ लिया कि परमेश्वर क्या विचार हमारे लिए once we understand what assignment He has given to me, एक बार हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर ने आपको क्या कार्य दिया है, we will automatically have a God-sized dream. तुरंत ही परमेश्वर के आकार के वो सपने हमारे पास For बनेंगे this year, इस साल के I लिए। don't know where you are right now, मुझे नहीं पता आप कहाँ पे हो, but I want to challenge you लेकिन मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। to think like how God thinks. सोचिए जिस प्रकार से परमेश्वर सोते हैं उस प्रकार से सोचिए। Hallelujah. Hallelujah. If you last time we read from Jeremiah 29:12 and 13, निर्मया 29, 12 और 13 में हमने पढ़ा। God says, if you seek me with all of your heart, you will find me. परमेश्वर कहते हैं पूरे दिल के गहराई से आप उनको अगर ढूंढो तो आप उनको पाओगे। If you want to know what God wants you to do, start searching for Him with all of your heart. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे तो आपके दिल की गहराई से उनको ढूंढना पहले शुरू कर He दें। will tell you what to do. फिर वो आपको बताएंगे कि क्या करना He है। will show you your destiny. आपके भविष्य को वो दिखाएंगे। Abraham got a God-sized dream. अब्राहम के पास में परमेश्वर के आकार का वो सपना था। God says, what did God say to Abraham? अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? I will make you into a large nation. मैं तुमसे राष्ट्र उत्पन्न करूंगा। This was when he was 75 years old. 75 साल का वो इंसान था उस And वक्त। he did not even have one son of his own. और अपना खुद का एक बेटा तक नहीं था उसके पास। And God comes and says, I will make you into a nation. और परमेश्वर उसके पास में आकर कहते हैं Have, खुद से मैं राष्ट्र have a उत्पन्न करूंगा। God-sized dream. परमेश्वर के आकार का वो सपना रखे। Gideon got a God-sized dream. गिदियोन के पास में वो सपना था। Ended up defeating 135,000 Midianites with only 300 Israel. 300 इजरायलियों के साथ में उन्होंने 1,35,000 वहां पे मिदियानियों लोगों को उन्होंने हराया था। Hallelujah. Hallelujah. David got a God-sized dream. दाऊद के पास में वहां पे वो सपना था परमेश्वर के आकार The का। Messiah will be called the son of David. मसाया जो है वो दाऊद का कहलाएगा जाएगा। Jonah got a God-sized dream. योना के पास में वो परमेश्वर के आकार का सपना था। To preach the gospel, preach the message of repentance to Nineveh and bring them to repentance. निनवे को वहां पे पश्चाताप का समाचार प्रचार करने के लिए और परमेश्वर के पास में वापस उन लोगों को लेकर आने के Paul लिए। got a God-sized dream. पौलुस के पास में परमेश्वर का आकार का वो सपना To था। preach the gospel to the Gentiles for the first time ever. अन्य जातियों को पहली बार उसने जाकर वहां पे प्रचार किया था। Hallelujah. हालेलुया। Lord, what do you want me to do? परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूं? In which direction do you want me to go? किस दिशा में मैं जाऊं? How will I know? मैं किस प्रकार से जा When पाऊंगा? you seek Him with all of your heart, अपने दिल की गहराई से जब आप उनको ढूंढते हैं He will show you. वो आपको बताएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको church? समझ में आ रहा है कलीसिया? You are chosen to be giant slayers. आपको वहां पे आप चुने गए हो ताकि आप वो हट्टे कट्टे लोग वो जो हट्टे कट्टे या फिर दानवों को वहां पे आप मार पाओ। Hallelujah. Hallelujah. You are not ordinary people. आप सर्वसाधारण लोग नहीं हैं। Maybe right now what you are doing seems ordinary, हो सकता है आप जो कर रहे हो अभी लग रहा हो कि वो सर्वसाधारण है, but God has called you to do great and mighty things. लेकिन परमेश्वर ने आपको महान कार्य करने के लिए The बुलाया book of है। Daniel tells us, दानियेल की किताबें those बताता who है, know their God will do mighty exploits. जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वो महान कार्य कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Jeremiah 29 and 12, 13. Again, I want to remind you. मैं 29, 12 और 13 में वापस से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। You will seek me and find me when you search for me with all of your heart. अपने दिल की गहराई से जब आप मुझे ढूंढोगे तब आप मुझे पाओगे। This year ये साल is a year of running after the presence of God, my friends. ये साल है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे दौड़ लगाते हैं। This is a year of seeking after Him, हम ढूंढते हैं उनको, हम ढूंढते हुए जाते हैं, pursuing His face. उनके चेहरे को निहारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And as we do that, और जैसे भी करते हैं automatically He will tell us, तुरंत ही वो आपको my बताएगा, son, my daughter, मेरे पुत्र और मेरी पुत्री, this is what you need to do. ये आपको करना है, This is your assignment. ये आपका कार्य है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let's go to Matthew 14. मत्ती 14 के पास हम जाएंगे।
verse 15 onwards. 15 से आगे। Matthew 14 verse 15 onwards. मत्ती 14। We probably know this event हमको ये वो वाक़या पता होगा because this is listed in all of the 4 gospels. वो 4 पुस्तकों में वहाँ पे सुवार्ता की पुस्तकों में भी लिखा गया है। This is where Jesus is feeding the 5,000. यहाँ पे यीशु मसीह 5,000 लोगों को वहाँ पे खिला रहे हैं। How many of you have heard of this miracle before? कितने लोगों ने इस चमत्कार के बारे में पहले सुना है? Okay, most of us. बहुत से लोगों ने। So we won't read through the whole thing. ये पूरे अध्याय को हम नहीं पढ़ेंगे। Just few verses I want to read for you. चंद वचनों को हम पढ़ेंगे। And let us see और हम देखेंगे what God is talking to us today. परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहता है। Verse number 15 onward. 15 से आगे। When it was evening, the disciples came to him and said, "This place is desolate, and the hour is already late. So send away the crowds, that they may go into the villages and buy food for themselves." But Jesus said to them, "They do not need to go away. You give them something to eat." Verse 15. जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो गई है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाना दे दो। Amen. Amen. Okay. So, do you understand the entire scenario? What is going on here? आपको ये पूरा चित्रीकरण समझ में आ रहा है? Jesus is sitting in front of a crowd. यीशु मसीह भीड़ के सामने। This is a huge crowd. और ये बड़ी भीड़ है। Some scholars say around at least 20,000 people are sitting in front of Jesus. और कुछ बुद्धिमान लोग ये कहते हैं 20,000 से भी ज्यादा वहाँ पे लोग उनके Because we know that there are at least 5,000 men. तो यहाँ पे हमको ये तो बताया वचन में लिखा गया है कि 5,000 पुरुष है वहाँ पे। Plus women. नारियां भी उसके साथ Plus हैं। children. और बच्चे भी। Plus bachelors and single women. युवा लोग भी रहेंगे, पता नहीं। You know, at least 20-25,000 they are there in front of Jesus. देखिए यीशु मसीह के सामने 20-25,000 तो लोग वहाँ पे रहेंगे। So now the disciples are thinking very logically. तो जो चेले हैं वो अपने बुद्धि से विचार कर रहे हैं। Who will feed them? उनको खाना कौन खिलाएगा? They must be hungry. ये लोग भूखे रहेंगे। I honestly feel like the disciples themselves were hungry. That's why they were saying. मुझे तो ऐसा लगता है ये चेले लोगों को भी भूख लग रही थी इसलिए। Right? Because the disciples might not have had anything. क्योंकि चेलों ने शायद कुछ नहीं खाया होगा। But look at the way Jesus responds. लेकिन देखिए किस तरह रीति से यीशु मसीह वहाँ पे प्रतिसाद करते हैं। What does Jesus say? Verse number 16. 16वां वचन। They do not need to go away. उनको जाना वहाँ पे आवश्यक नहीं है। You give them something to eat. तुम ही इनको खाना दे दो। Can you imagine the reaction of the disciples? आप कल्पना कीजिए चेलों का वहाँ पे क्या प्रतिसाद होगा? Lord, you have lost it. आप शायद सब खो चुके हैं, अभी सोच नहीं पा रहे सही तरीके से। Sometimes in the Bible, और ये तो शास्त्र में कभी-कभी है। when God tells us to do certain things, जब परमेश्वर हमें कभी कुछ करने के लिए कहते हैं, it feels like Lord, तो थाम जरा। ऐसे लगता है परमेश्वर हो गए, oh you just wait for some time, I don't think you're speaking straight. And in the book of John, in chapter number 6, in the same account, यूहन्ना 6 उसी इतिहास को देखते हुए, it says that Philip answered him. फिलिप्पुस ने उसको उत्तर This दिया। is verse number 7, John 6 and verse number 7. यूहन्ना 6:7 Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little. यूहन्ना 6:7 है। फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी न होगी। So Philip, probably a mathematician among the disciples, हो सकता है फिलिप्पुस वहाँ पे मैथमेटिशियन हो, takes out his calculator. अपना कैलकुलेटर उसने निकाल लिया। वो टाइम तो कैलकुलेटर नहीं होगा, I don't know what abacus they had. हाँ, शायद अबाकस उनके समय में He रहेगा। takes out, that wooden calculator and starts to calculate how many people. Okay, 25,000 people are there. कितना लगेगा हर एक के लिए, पर प्लेट कितना होगा, everything he was calculating. हो सकता है अपना अबाकस स्केल वहाँ पे उसने निकाल लिया होगा और देख लिया होगा कि अरे बाप रे 25,000 लोग हैं, तो 25,000 लोगों के हिसाब से कितना खाना लगेगा, तो वो सारा वहाँ पे कैलकुलेशन करना शुरू उसने कर दिया। See, when God gives you a vision,
जब परमेश्वर आपको दृष्टांत देते when हैं, God gives you an assignment, जब परमेश्वर आपको एक कार्य देते He हैं, will never give it according to your budget. तो आपके बजट के हिसाब से वो नहीं देंगे। He वो never gives it to us according to our capabilities. हमारी योग्यता के हिसाब से वो नहीं देते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So there is one disciple. एक चेला His वहाँ name is है, Andrew. एंड्रू, So he goes into the crowd. तो वो भीड़ में जाता है। Okay, let me check if somebody has, leftover in their dabba. हाँ, जाके मैं ढूंढता हूँ कि किसी उनके पास में कुछ बचा कुचा होगा अपने And डब्बे then में। he goes finds a small kid. छोटा बच्चा वो ढूंढ लेता है। And I don't know, did he snatch it from the kid or because I know kids these days they don't want to give their stuff. So, but kids during the time of Jesus they were very generous, I think. उसने शायद वो भीड़ में गया होगा, बच्चे को देखा होगा, उसके पास में वो उसका टिफिन था तो शायद उसने उससे खींच लिया होगा। मैं ऐसा ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि आज के समय में किसी बच्चे को कुछ मांगो तो ऐसी आसानी से देगा नहीं, खींचना पड़ता है क्योंकि इस जमाने के बच्चे हैं वो। Except for BFC kids. हाँ, बीएफसी कलीसिया के बच्चों को छोड़ के। Amen. Our kids are generous. हमारे That is the बच्चे culture of our हैं, church. यही हमारे कलीसिया का कल्चर है। Hallelujah. So he finds, Andrew goes and finds this kid, आंद्रियास वहाँ पे जाता है, बच्चे को ढूंढ लेता है। and then other disciple might be, कितना मिला? बाकी के चेले पूछ रहे होंगे, अरे कितना मिला वहाँ पे? He हम says, मछली गए। 5 loaves, 2 fish. अरे 5 रोटी और 2 मछली मिली। And that disciple might be like, 5 loaves में क्या करेगा भाई? और शायद माथे पे उसने हाथ मारा होगा जो उसे कहा होगा, अरे बाप रे, अरे 5 रोटी और 2 मछली से इतने लोग कैसे मिलेंगे? Maximum 2 people can eat. 2 लोग, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग खा लेंगे इसमें। But he brings it to Jesus. लेकिन वो यीशु मसीह के पास में लेके आता है उसको। Matthew 14 verse number 18. We won't read through it. मत्ती 14:18 में You हम इसे can पढ़ेंगे। study the passage. पूरे अध्याय को आप पढ़ सकते हो। Jesus says, bring them here to me. यीशु मसीह कहते हैं उसे मेरे पास में लेकर आओ। Hallelujah. हालेलुया। Bring it here. मेरे पास लेकर आओ। Today I don't know what you have in your hands. मुझे नहीं पता आपके हाथ में आज क्या है। Maybe the Lord has given you a vision to set up a business. हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक दृष्टांत दिया है कि आप एक व्यापार स्थापित करें। Maybe you might be thinking, "Arey, I don't have enough money in my hand today. हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे कि अरे मेरे हाथों में इतना पैसा ही नहीं है। Where will the capital come from?" पैसा आएगा कहाँ से? Jesus says, यीशु मसीह कहते हैं "What do you have? आपके पास में क्या है? What do you have?" आपके पास में क्या है? Lord, I have 5 loaves and 2 fishes. मेरे पास में 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं। He says, "Bring them here. मेरे पास में लेकर आओ। Bring it here." मेरे पास में लेकर आओ। Hallelujah. हालेलुया। Surrender is the way of the kingdom. राज्य का नियम मार्ग यही है कि हम अधीन हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। Abraham was asked to give up his only son. अब्राहम को बोला था कि अपने इकलौते पुत्र को वहां पे त्याग दे, But when he did, लेकिन जब उसने ये किया he got a nation. उसको राष्ट्र मिला। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding, church? आपको समझ में आ रहा है? In the kingdom of God, परमेश्वर के राज्य में when we give, जब हम देते हैं we do not lose. तो हम उसे खोते नहीं। When we give, जब हम देते हैं it increases. तो वो बढ़ोतरी होता है, It becomes fruitful. वो फलदायी होता है। Hallelujah. हालेलुया। This is the law principle of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का ये नियम है। Today I don't know what you have in your hands. मुझे नहीं पता आज आपके हाथ में क्या है, What talent God has given to you. क्या योग्यता परमेश्वर ने आपको What दी है। ability God has given to you. परमेश्वर ने आपको क्या योग्यता दी Maybe it है। is very insignificant. हो सकता है बहुत ही मामूली सी हो। Are you willing to give it to God? क्या आप तैयार हो परमेश्वर के हाथों में देने के Are लिए? you willing to surrender it to God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के अधीन करने के लिए? Because He is waiting. क्योंकि वो रुके है। My son, my daughter, मेरे बेटे, मेरी पुत्री, when will you give it to me? आप कब मुझे ये दोगे? Because we all know what happened after. क्योंकि हम सबको पता है उसके बाद में क्या हुआ। Right? हाँ, Have you heard in First Kings, पहले राजा, chapter 17, 17वें अध्याय में there is a story of a widow and a son. एक विधवा और उसके पुत्र के बारे में वो कहानी है। She's called the widow of Zarephath. जरफा की वो विधवा है ऐसे कहा गया Have है। you heard that story? आपने ये कहानी को सुना है?
So there is a man of God, a prophet of God called Elijah. एलाइजा वो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है। Let's actually read chapter 17 and verse 9. पहले राजा उसका 17वां अध्याय और 9वां वचन। Yes, First Kings 17 verse 9. पहले राजा 17। So God says to Elijah, तो परमेश्वर एलीशा से कहते हैं, arise, go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I have commanded a widow there to provide for you. चल कर सिदोन के सराफत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां एक विधवा को तेरे खाने की आज्ञा दी है, खिलाने के लिए आज्ञा दी है। Okay, who is going to provide for Elijah? What do you think? तो एलिया के लिए कौन वहां पे खाना देने वाला है? Who will provide? कौन देने वाला था? You can look at the screen. आप स्क्रीन देख सकते हैं। Who is going to provide for Elijah? एलिया को कौन देने वाला है वहां पे खाना? Yes. Widow. एक विधवा। The widow was supposed to provide. ये जो विधवा है वो उसे खाना देने वाली थी। Correct? हाँ यार। Correct? Okay, we know the story. ये कहानी हमको पता है। Let me just paraphrase it for मैं you. उसे सारांश में बताने की कोशिश करता हूँ। So Elijah goes to this widow. एलिया इस विधवा के पास He जाता है finds her collecting sticks. और वो देखता है कि वो वहां पे लकड़ियां इकट्ठा कर रही है। And then he goes to her and says, उसके पास में जाकर वो कहता है, give me some water to drink. मुझे पानी मिलेगा पीने के And लिए? as she's going to get some water, जैसे वो गई वहां पे पानी लेकर आई, he also says, get me some bread to eat. उसने ये भी कहा कि मुझे खाने के लिए रोटी देना। And then she says, you know, I have only 1 cup of flour. उसने प्रतिसाद में ये कहा कि देखो मेरे पास में 1 कटोरा वहां पे वो आटा है। I was planning to bake some bread. उससे मैं रोटी बनाने वाली Me थी। and my son, we were supposed to eat it मैं और मेरा बेटा उस रोटी को हम खाने वाले थे and die. और मरने वाले थे। Okay, so how much does the widow have? तो उस विधवा के पास में कितना था? How much? कितना था? Everybody say 1 cup. 1 कटोरी। 1 cup. 1 कटोरी। But in the verse that we read, लेकिन जिस वचन को हमने पढ़ा, verse number 9, 9वां वचन, what does God say? परमेश्वर ने क्या कहा? That the widow will provide for you, Elijah. कि एलिया वो विधवा तुझे खाने के लिए देगी। How much did the widow have? विधवा के पास में कितना था? Did God not know? परमेश्वर को ये पता नहीं था क्या? Did God not know that the widow only had 1 cup? परमेश्वर को ये पता नहीं था क्या कि इस विधवा के पास में सिर्फ 1 कटोरी वहां पे आटा है? God doesn't think like how you think. परमेश्वर उस हिसाब से नहीं सोचते जिस हिसाब से आप सोचते His हैं। ways are above our ways. उनके जो मार्ग है Hallelujah. आपके मार्ग के सोचने के परे है। Hallelujah. हालेलुया। God knew that she had only 1 cup. परमेश्वर को पता था कि उसके पास में सिर्फ 1 कटोरी आटा God है। knew she was deciding to make 1 bread, and she and her son, they were going to eat it and they were going to die. परमेश्वर को ये तक पता था कि ये विधवा उस कटोरी आटे से वहाँ पे रोटी बनाएगी और उसे खाकर वो और उसका बेटा वहाँ पे मरने वाले हैं। Does God not know that you don't have enough money to start that business? क्या परमेश्वर को ये पता नहीं है कि आपके पास में पर्याप्त वहाँ पे धन नहीं है ताकि आप उस व्यापार को शुरू कर पाओ? Does he not know what you earn is barely enough to provide for your family and pay your EMIs? क्या? And yet he is asking you to sow into the ministry, into the kingdom of God. क्या परमेश्वर को ये पता नहीं कि आप जो तनख्वाह लेकर आते हो उससे आपका जो गुजारा है वो तक नहीं हो पाता है, तो भी परमेश्वर आपको ये कह रहे हैं कि परमेश्वर की सेवकाई में आप वहाँ पे बो। He knows. उनको पता है। He knows. उनको पता है। Hallelujah. हालेलुया। But an assignment was given to this widow. लेकिन इस विधवा के लिए कार्य दिया That गया was to feed Elijah. एलिया को वहाँ पे खाना देने के लिए। And when God has given you an assignment, my friends, जब मित्रों परमेश्वर ने आपको एक कार्य दिया है, heaven will back you up. स्वर्ग आपका समर्थन करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? Elijah said, एलिया ने कहा, you first make for me, देखो तुम पहले मेरे लिए रोटी and बना give me bread, और मुझे रोटी दे दो, then you make for yourself and your son. फिर बाद में आप देख सकते हो अपने आप के लिए और अपने बेटी के लिए बना सकते हो। So the lady also might be thinking, तो ये ना विधवा भी सोच रही होगी, this is a prophet, अरे ये तो भविष्यवक्ता but है, his maths is so weak. लेकिन उसकी गिनती इतनी खराब है।
I just told him अभी तो मैंने उसको बताया I have enough to make one bread. मेरे पास में उतना ही आटा है कि उससे मैं एक रोटी वहां पे बना सकता But हूँ। he's saying, you know, I will also eat and you will eat and your son will also eat. उसने भी वो ये कह रहा है कि उस कटोरी आटे में भी मैं भी रोटी खाऊंगा, तू भी खाएगी, तेरा बेटा भी खाएगा। This is the maths of the kingdom of God. ये परमेश्वर की वहां पे होगी। Hallelujah. Hallelujah। You will never lack anything in your house. आपके घर में किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। Why? क्यों? Because what you do is not your assignment, it is God's assignment. आप जो करते हैं वो आपका कार्य नहीं है, वो परमेश्वर का कार्य है। Hallelujah. Hallelujah। Hallelujah. Hallelujah। Verse number 15 says, 15 वचन ही So कहता है। she went, तो वो वहां पे गई, did according to the word of Elijah. एलिया के शब्द के अनुसार उसने किया, And she and he and her household ate for many days. वो उसका घराना बहुत दिन तक वहां पे खाते रहे। Hallelujah. Her assignment was to provide for Elijah. उसका कार्य यही था कि एलिया के लिए वहां पे खाना उपलब्ध करे। She provided for Elijah. एलिया को उसने खाना उपलब्ध Of कर course, दिया। God was the source of the miracle. हाँ, परमेश्वर उस चमत्कार के स्रोत जरूर थे। Correct? हाँ या ना? God did the miracle. परमेश्वर ने उसका But चमत्कार, she, from her kitchen, she was giving to Elijah. लेकिन अपने वो किचन में से वो एलिया को दे रही थी, And she and her household also were enjoying the blessings. और उसके द्वारा वो और उसका घराना उसके आशीष का लुत्फ उठा रहा था। Hallelujah. Do not limit God. परमेश्वर को सीमित न करें, I don't care what is in your hands today. मुझे नहीं पता कि आपके हाथ में क्या है, Give it in the hands of Jesus. वो परमेश्वर के हाथों में दे दो। Hallelujah. Hallelujah। Coming back to Matthew 14, मत्ती 14 के पास में मुड़ते हुए where Jesus fed the 5,000. यीशु मसीह ने 5,000 को खिलाया। He said, bring them here, the 5 loaves and the 2 fishes. यीशु मसीह ने कहा, वो जो 5 रोटियां हैं और 2 मछलियां मेरे पास में लेकर आओ। The Bible says पवित्र शास्त्र कहता है that he ordered people to sit down. उसने आज्ञा दी कि लोगों को पंक्ति में वहां पे बैठे, Then he took the loaves and the 2 fishes, और वो रोटियों को और 2 मछलियों को उसने स्वर्ग की ओर उठाया, looked up to heaven, स्वर्ग की तरफ उसने देखा, blessed it, उसे आशीष दिया। and gave it back to next verse. Verse number 19. 19वां वचन, And gave it back to the disciples. और अपने चेलों को उसने वापस लौटा दिया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Okay, let me give you an example. मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। If I give this phone to Joy, if I give it away, अगर पासवान जॉय को ये फोन दे देते हैं, now whose phone is it? अभी किसका फोन है? Whose phone is it? किसका है ये फोन? It is Joy's phone. जॉय का फोन है वो। It's not mine anymore. ये भी पासवान का नहीं है। I can't say, अरे मेरा phone वापस दे. अभी पासवान ये नहीं कह सकते कि गिव बैक माय फोन, Because I have given it away as a gift. क्योंकि एक भेंट के रूप में मैंने उसको दे दिया है। This is what surrender is. यही अधीन होना है। When Andrew was giving those 5 loaves and 2 fishes to Jesus, आंद्रियास जब ये 5 रोटी और 2 मछलियां यीशु मसीह को दे he रहे did हैं, not know what was going to happen after that. उसे नहीं पता था इसके बाद में क्या होने वाला है। Right? हाँ या ना? He was just surrendering. वो अधीन हो रहा He था, was just surrendering. सिर्फ अधीन हो रहा था। Today, आज there are many things in our life हमारे जीवन में बहुत सी चीजें हैं that we need to surrender into His hands. जो हमको उनके अधीन करना Do है। you know why they are not growing? आपको पता है हम क्यों नहीं बढ़ पा Why रहे? there is no multiplication? क्यों वहाँ पे बहुगुणितता Why we नहीं है? don't see the blessings of God? परमेश्वर के चमत्कार हम नहीं देख पा रहे हैं, Because we are holding on to it, hiding it, keeping it locked up in the treasure chest. क्योंकि हम इन सारी चीजों को वहाँ पे थामे हुए हैं, दबा के रखे हैं, अपने पास में छुपा के रखे हैं और तिजोरी में ताला मार के रखे हुए हैं उसको। Hallelujah. हालेलुया। Because it is ours, it is mine, right? मेरा है ये, क्योंकि That phone was mine. ये फोन मेरा है, But once I give it away, लेकिन एक बार मैं दे देता it's हूँ, not mine anymore. ये पासवान का नहीं रहता। Once you give to God, एक बार आप जब परमेश्वर को दे देते हैं, whatever you have, चाहे कुछ भी आपके पास में क्यों ना हो, that is not yours anymore. फिर वो आपका नहीं रहता। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When Andrew gave that bread and that fish to Jesus Christ, आंद्रियास ने जब ये रोटी और मछली यीशु मसीह को दे दी, it was not that child's bread anymore. ये उस बच्चे की रोटी नहीं हुई तब, It became Jesus' bread. वो यीशु मसीह का रोटी हुई। He became the owner of that. वो उनके मालिक हो गए। Hallelujah. हालेलुया।
So now, इसलिए अब when Jesus gives that bread back to the disciples, यीशु मसीह यही रोटी जब चेलों को वापस लौटाते हैं, whose bread is Jesus giving? तो ये रोटी यीशु मसीह किसको दे रहे हैं? He is giving his bread, not the ordinary bread. Hallelujah. सर्वसाधारण रोटी नहीं है, वो यीशु मसीह की रोटी है जो अपने चेलों को वो दे रहे हैं। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है ये? Are you understanding, आपको church? समझ में आ रहा है? So when I take my phone back, जब मैं वापस अपना फोन ले लेता I हूँ, can't say this was my phone. मैं ऐसा नहीं कह सकता ये मेरा फोन था। I can say that Joy has given it back to me now. मैं ये कह सकता हूँ कि जॉय ने ये फोन मुझे वापस लौटा दिया है। This was his phone, ये उनका फोन था, right? Because I had given it away. क्योंकि मैंने उसे दे दिया था। There are some things in our life कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ऐसी that हैं we need to give away to the Lord, जो हमने परमेश्वर को दे देनी है, that we need to surrender. जो अधीन करनी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. परमेश्वर को स्तुति हो। Are you understanding, church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? And when the 5 loaves and 2 fishes, they touched the hands of the Creator, जब 5 रोटी और 2 मछलियों ने उस निर्माणकर्ता के हाथों को स्पर्श कर लिया, they had no option but to multiply. उनके पास में वहां पे कोई चुनाव नहीं था, लेकिन वहां पे गुणित होने के लिए, Hallelujah. हालेलुया, And then he gave them back to the disciple. तो वो जब उसने चेलों को वापस लौटा दिया, What happened? क्या हुआ? It seems to me मुझे ऐसे लगता है that after Jesus gave back the bread and the fish, यीशु मसीह जब रोटी और उस मछलियों को दे दिया, the miracle happened, the multiplication, it happened in the hands of the disciples. जो गुणाकार है वो चेलों के हाथ में आकर फिर वहां पे शुरू हुआ। Hallelujah. हालेलुया। Because Jesus, he looked up to heaven, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर देखा, broke the bread, उस रोटी को तोड़ा, gave to his disciples, अपने चेलों को दे दिया and told them, go give to the people now. और चेलों को कहा कि जाओ अभी लोग में ये बांट दो। And as the disciples were giving, और जैसे ही चेले वहां पे बांट रहे थे in their hands it started to multiply. और उनके हाथों में गुणाकार होना वहां पे शुरू हो गया। Okay, at the end, how many baskets were left? और आखिर में कितने वहां पे बच गया था, कितना खाना बच गया था? 12 baskets. How many disciples were there? 12 बास्केट्स थे वहां पे। कितने वहां पे चेले थे? 12 disciples, right? I believe मैं ये विश्वास करता हूँ each disciple had a basket. हर एक चेले के पास में एक And बास्केट as they था। were serving the people, और जैसे ही वो लोगों में बांट रहे as they were handing out the bread and the fish, जैसे ही वो वहां पे रोटी in बांट their रहे basket it was multiplying. उनके बास्केट में वहां पे वो गुणाकार हो रहा था। Hallelujah. हालेलुया। Because now it was not ordinary bread. क्योंकि वो सर्वसाधारण रोटी नहीं हुई, It was supernatural bread. वो स्वर्ग से उतरी हुई वो Because रोटी now थी। it had touched the hands of the Creator. क्योंकि निर्माणकर्ता के हाथों को उसने स्पर्श कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। When you give your life, whatever you have, into the hands of Jesus, आपके पास में जो कुछ भी आपके जीवन को आप जब यीशु मसीह के हाथों में दे देते हैं, it is no longer yours. वो आपका नहीं रहता। But now because He owns it, लेकिन क्योंकि वो अभी आपके He मालिक gives है, it back to you. वो आपको वापस लौटाते हैं And now it will be blessed. और फिर वो आशीष पाएगा। You will see multiplication. गुणाकार आप देख पाओगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? Okay. When we started reading this parable, जब हम इस कहानी को पढ़ रहे थे, whom did Jesus ask to provide for the people? यीशु मसीह ने किसको कहा कि लोगों को खाना दे दो? Disciples, right? चेलों को कहा, Because Jesus said, you feed them. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा तुम ही इनको खाना खिला दो। Towards the end of this miracle, और इस चमत्कार के आखिर में who is feeding the people? लोगों को कौन खिला रहा है? Jesus could miraculously make bread and fish appear in front of every person, right? यीशु मसीह चमत्कारिक तरीके से हर एक लोगों के सामने वो रोटी और मछली वहां पे उत्पन्न कर पाए, Right? हाँ या ना? Could he do that? क्या वो कर पाए? 100% he could do that. 100% वो ये कर पाए, But he gave an assignment to the disciples. लेकिन उन्होंने उन चेलों को एक कार्य दे दिया। You have to provide for them. तुमने उनको खाना देना है, You have to feed them. तुमने उनको खिलाना है। Hallelujah. Hallelujah. Today he has given an assignment to you, आज उन्होंने आपके लिए कार्य दिया, which he will not do it for you.
जो वो आपके लिए नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I just want to give one example and I want to stop. एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, फिर मैं वह बंद करूंगा। Because only you can do your assignment. क्योंकि आप ही आपका कार्य कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। There was a preacher एक प्रचारक था, and he took a bottle उसने एक बॉटल ले लिया, and he asked somebody to hold it. उसने कहा किसी को पकड़ लो। Can you see this bottle? ये बॉटल को देख पा रहे हैं? And then there were thousands of people sitting in front of him. हजारों लोग उसके सामने बैठे थे। And then he asked the church, "Church, do you want to see a miracle today?" कलीसिया, तुमको आज चमत्कार देखना है क्या? And the church all got up on their feet. Yes, we want to see miracle. कलीसिया पूरी अपनी खड़ी हो गई और कहने लगी कि हाँ, हम चमत्कार देखना चाहते हैं। The church got excited. कलीसिया भी उत्तेजित हो गई। They thought, he's going to turn water into wine or something. उन्होंने शायद ये कल्पना कर ली कि वो पानी को दाखरस में बदल देंगे, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चल रहा था। So he stood far off दूर वो खड़ा रहा and he said, "In the name of Jesus, और उसने कहा यीशु के नाम में I command you water, मैं आके देता हूँ पानी, come out of that bottle उस बाटी में से बाहर निकल and come in my stomach." और मेरे पेट में आ जा। First time he said, पहली बार उसने कहा nothing happened. कुछ नहीं हुआ। The church was waiting, everybody started praying in tongues, they were thinking something will happen now. कलीसिया भी वहाँ पे रुकी हुई थी, अचानक वो अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे और चमत्कार की वहाँ पे अपेक्षा कर रहे थे। Okay, let's increase our expectation. चलो हम अपनी अपेक्षा को वहाँ पे बढ़ाते Let's हैं, increase our faith. अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। In the name of Jesus, यीशु के नाम में what I command you, पानी में आके देता हूँ, come out of the bottle, इस बॉटल में से बाहर निकल, come in my stomach. मेरे पेट में आ जा। Nothing happened. अरे कुछ नहीं हुआ। And 5 times he did that. 5 बार उसने ये कर लिया। And after 5 times, 5 बार के बाद he walked, उठ गया, took the bottle, बॉटल ले ली, opened it, ढक्कन खोला, पानी का ढक लिया। so many times, बहुत से बार we ask God to do what he has asked us to do. बहुत से बार हम परमेश्वर को कहते हैं चमत्कार करने के लिए, जो हालांकि उन्होंने कहा हमको करने के लिए। समझ रहे हैं? अभी अंडरस्टैंड? He is telling you, go do this. उन्होंने ये कहा है तुम जाओ ये कर लो, But we are still on our knees. तो भी हम अपने घुटनों में आते हैं। Lord, you do it for me. प्रभु आप मेरे लिए करो। No, you do this. He's saying, son, I have assigned you to do it. अरे बेटे, मैंने तुझे ये कार्य दिया है करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। The disciples, जो चेले हैं, it was their assignment to feed the 5,000. ये उनका कार्य था कि वो 5,000 लोगों को वहाँ पे खाना खिलाए। Correct? आया ना? And in the end, they only fed them. आखिरी में उन्होंने ही उनको खाना खिलाया। But लेकिन they couldn't have done it without Jesus. वो ये नहीं कर पाते अगर यीशु मसीह के साथ में नहीं रहते। It is impossible to fulfill your assignment without God. परमेश्वर के बगैर आपका कार्य नामुमकिन है आप पूरा कर So that is why you need Him every step of the way. इसीलिए मार्ग में हर एक कदम में आपको उनकी जरूरत You है। need to keep giving Him what you have. आपको जरूरत है कि आपके पास में जो कुछ भी है उनके हाथों में As आ He touches it, और जैसे वो स्पर्श as करता the Creator blesses it, है, जैसे निर्माण करता है He उसे gives स्पर्श it करता है, back. आपको देता है, It multiplies. एक बहुगुणित होता है। We see supernatural provision in our life. अलौकिक सारी चीजों को पुराठा होते हुए हम देख पाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Can we all rise up on our places at this time? इसी समय हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Lord, we want to thank you. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। Thank you for speaking to us today. आज आपने हमसे बात की इसलिए धन्यवाद। Church, I don't know what you need to give to God today. कलीसिया मुझे नहीं पता आज आपको क्या परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। Maybe in the past years, in the past months, He has asked you to do something. हो सकता है बीते हुए दिनों में, बीते हुए महीनों में उन्होंने कुछ कहा है आपको करने के लिए। Maybe He has asked you to expand your business. हो सकता है उन्होंने कहा है कि आपके व्यापार को आगे बढ़ाओ। Maybe He has asked you to start looking for a bigger house. हो सकता है उन्होंने आपको ये कहा होगा कि एक बड़े घर की खोज आप करो। And maybe you don't have the resources right now. हो सकता है आपके पास में उस समय सारी चीजें उपलब्ध ना हो। Maybe He has asked you to apply for that promotion. हो सकता है उन्होंने आपको कहा है उस प्रमोशन के लिए आप अप्लाई करो। Maybe He has asked you to step out into that ministry. हो सकता है उन्होंने कहा है आप उस सेवकाई में कदम उठाओ।
But you might be saying, Lord, I don't have the resources. लेकिन आप ये कहते हो कि मेरे पास में उपलब्धियां नहीं I am है, not gifted. मैं वहाँ पे दान मैंने नहीं पाया। Maybe the Lord is asking you to open your house for His ministry. परमेश्वर शायद ये चाहते हैं कि उनकी सेवकाई के लिए आप अपना घर खोल दो। Lord, my house is not that big. प्रभु मेरा घर तो इतना बड़ा नहीं है, My house is not fancy. मेरा घर बहुत चमक धमक नहीं है। What do you have? आपके पास में क्या है? Whatever you have, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, give it to Him. उनको दे दो। Surrender it to Jesus. यीशु के अधीन And करें He will bless it. और वो उसे आशीष He will multiply it. वो उसे बहुगुणित करेंगे You will see the supernatural provision and intervention of God. और परमेश्वर के अलौकिक वहाँ पे कार्य को आप देख पाओगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। And you will realize और फिर आप ये एहसास करोगे, it's not by power, ये सामर्थ की वजह से नहीं, it's not by might, ये ताकत की वजह से नहीं, but things will start happening by the Spirit of the Lord. चीजें होगी परमेश्वर की आत्मा की You वजह will से। see supernatural provision, supernatural things happening in your life. अलौकिक पुरोधे को अलौकिक चीजें होते हुए आप देख पाओगे। But we need to let go of what we have जो आपके पास में आप थामे रहे हो उसे जाने दो, so that God can make it His ताकि परमेश्वर अपना ले उसे and He can bless it. और उसे वो आशीष दे पाए। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर। Lord, we just want to thank you. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, Thank you for speaking to us. हमसे बात करने के Thank you लिए। for reminding us once again आपने दोबारा हमको याद दिलाया that this धन्यवाद। year is a year of seeking your presence, seeking your face. ये साल आपकी उपस्थिति को, आपके चेहरे को वहाँ पे ढूंढने का वो साल है। And as we seek your face, Lord, जैसे हम आपके चेहरे को ढूंढते हैं, as the assignments, the calling that you are keeping upon all of us, Lord, जो कार्य, जो बुलाहट हम में से हर एक के ऊपर आपने रखी है, I pray हम प्रार्थना कर that रहे you हैं would give us the grace कि आप हमें अनुग्रह दें, to let go what we have in our hand, हमारे हाथों में जो है वो हम थामे न रहे, to उसे जाने दें। stop trying to do things by our own self, हमारे अपने बल पे कोशिश न करें चीजें करने की, but let go into your hands, लेकिन आपके हाथों में हम उसे सौंप दें, to let go उसे जाने दें and let God take over. और परमेश्वर को नियंत्रित करने दें। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, in the days to come, आने वाले दिनों में परमेश्वर may this entire church ये पूरी कलीसिया experience supernatural growth वो अनुभव करे अलौकिक बढ़ोतरी को, because of what they have surrendered. उन्होंने जो अधीन किया उसकी वजह से। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. we pray. यीशु के नाम में। And the church said, और कलीसिया कहे Amen. आमीन।